Hello students, welcome to the class. So in the previous videos we have learned something about partnership. हमने ratios and proportion से deal किया था. We saw various methods of dealing with sacrificing and gaining ratio. So today we enter one step forward and we will go towards admission of partners. Okay. So today admission के कुछ questions आपके सामने लेके आया हूँ. We are going to deal with ratio when it is combined with the scenario of admission. Okay, so let's see some examples. There are 4 different setups which I have written here in the board. We will see them one by one और देखते हैं कि हर सिनेरियो में हर केस में रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, एंड वंस अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, दिस इज द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ओके, नाउ इन माय फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, C is admitted for 1/6 share. This is the only information given. पहले से 2 पार्टनर हैं A and B. They share their profit and losses in the ratio of 3:2. There is a new partner C who is taking admission in the partnership firm for the ratio of 1/6. You have to calculate the new ratio. Okay. Now see this. What was the ratio of A and B? 3:2. Okay. Now C is coming for 1/6 शेयर. दिस इज ओनली गिवन. अभी 1/6 किस चीज़ का 1/6? सी यू हैव टू नो दिस. एनीथिंग इट इटसेल्फ इज 1. ओके, हर चीज़ अपने आप में एक होती है, 100% होती है. ठीक है. सो द होल शेयर ऑफ द फर्म इज 1 फ्रॉम विच सी इज टेकिंग 1/6. सो द रिमेनिंग शेयर विल बी दैट ऑफ A and B. ओके, ये पूरा फॉर्म का शेयर था अपने आप में एक, उसमें से 1/6 शेयर C ने ले लिया. तो ये जो बचा कुचा हिस्सा है, ये जो बचा कुचा हिस्सा है, दैट इज़ व्हाट बिलोंग्स टू A and B. ठीक है. तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले. तो हम A प्लस B का हिस्सा निकालते हैं. द शेयर ऑफ A and B इज इक्वल टू 1 - 1/6. जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा और ये 6 - 1 आएगा. सो द रिमेनिंग शेयर विल बी 5/6. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट द न्यू रेशियो. सो द न्यू रेशियो ऑफ ए विल बी उसके हिस्से का, दैट इज 5/6 का 3/5. इफ यू रिमेंबर दिस इज 3/5 is to 2/5 because 3 + 2 is 5 and the total share is 5 here. So 5/6 का 3/5 एक हो जाएगा. A will take this. Now coming towards B, 5/6 का 2/5. Okay, 2/5 share of 5/6 will be given to B and C का share already given है, that is 1/6. Okay, now we just have to equate the denominator so that we get the new ratio. 6 × 5 30, 5 × 3 15. Okay, here also 6 × 5 30 and 5 × 2 10. Okay, now here the denominator is 30, here the denominator is 30, but here the denominator is 6. So we have to equate all the denominators in order to bring a proportion. So 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा. ओके, सो द रेशियो विल बी 5/30. सो आवर न्यू रेशियो इज़ 15:10:5. ये आपस में कैंसिल भी होता है. 5 1s are, 5 2s are, 5 3s are. सो द न्यू रेशियो इज़ 3:2:1. ओके, so this was one type of question. Now moving to the another type of question. Let's see this. Here A and B are partners in the ratio of 7:5. C is admitted again for 1/6 share. कुछ आपको कॉमन दिखेगा हर क्वेश्चन में ताकि आप उसको रिलेट कर सकें. C is admitted for 1/6 share which he gets equally from both the partner, which means the share which he is getting 1/6 he acquires equally from A and B. So the ratio here, A and B's ratio is 7:5. C is coming again for 1/6 share, but this time 1/6 शेयर ये ऐसे ही पूरे फर्म से नहीं ले रहा है. इन जनरल वो आधा हिस्सा ले रहा है A से, आधा हिस्सा ले रहा है B से. फिर से आपको समझाने के लिए, दिस वॉज द
होल शेयर ऑफ द फर्म जो अपने आप में एक होता है, अगर आपको याद हो, ठीक है। इसमें ए और बी पहले से थे, ए का कुछ हिस्सा लिया और बी का कुछ हिस्सा लिया सी ने, तो ए और बी का हिस्सा हो गया कम। ए ने अपना आधा शेयर इसको दे दिया कुछ और बी ने अपना आधा शेयर इसको दे दिया कुछ। किसका आधा? तो 1/6 का आधा। चलिए देखते हैं। सो ही एक्वायर्स हाफ फ्रॉम ए एंड हाफ फ्रॉम बी। ओके, सवाल ये है किसका हाफ? 1/6 का हाफ। ओके, सो द हाफ ऑफ 1/6 इज टेकन फ्रॉम ए and half of 1/6 is taken from B, which means he took 1/12 from A and 1/12 from B. Okay, if you can see this, he took 1/12 and 1/12 from A and B. Okay, now moving forward, we will directly calculate the new ratio. When you see the new ratio, तीनों की बात एक साथ करते हैं। What was the old ratio of A? 7/12 and 5/12. Okay, so the old ratio of A was 7/12 and old ratio of B was 5/12. Okay, now 7/12 में से इतना C को देना है, दे देते हैं उठा के। 7/12 के बाद 5/12 में से भी इतना हिस्सा हमको C को देना है और टोटल इसको मिल जाएगा 1/6। ओके, सो यहाँ पे काम इजी हो गया है। द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो द एलसीएम विल ऑटोमेटिकली विल बी 12। 7 - 1 विल बी 6। हियर ऑल्सो एलसीएम विल बी 12। 5 - 1 विल बी 4 एंड टू इक्वेट द डिनोमिनेटर 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 2/12। सो माई न्यू रेशियो हियर इज 6:4:2 and we can again cancel this from 2 1s are 2 2s are 2 3s are, so my new ratio is 3:2:1. remember this, we always show the ratio in the simplified form. okay, हर बार रेशियो को सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया जाता है। now moving to the third question, this is also of the same variety but there is some difference. okay, here also A and B are partner in the ratio of 7:5. C is admitted for 1/6 share which he gets 1/24 from A and 1/8 from B. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है कि पिछली बार उसने 1/6 का आधा आधा दोनों से लिया था, पर यहाँ पे वैसा कोई आधा आधा वाला सिनेरियो ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ये दिया है कि ही टेक्स 1/24 शेयर ऑफ A एंड 1/8 शेयर ऑफ B। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से यहाँ आने में बस इतना ही डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे उसको इक्वली लिया था, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड इट, बट हियर व्हेन वी मूव टू दिस क्वेश्चन देयर इज नो इक्वल शेयर, सो देयर विल बी नो डिवीजन इन 1/6, ऑटोमेटिकली 1/24 और 1/8 ही लिया जाएगा। ओके, सो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट द न्यू रेशियो। A's share was 7/12, B's share was 5/12 and C का शेयर तो ऑलरेडी 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, ना मूविंग फॉरवर्ड, A इज गिविंग 1/24, तो सीधे 1/24 इसने दे दिया। B इज गिविंग 1/8, तो सीधे 1/8 इसने दे दिया, एंड ही इज ऑलरेडी हैविंग 1/6। ओके, सो नाउ वी विल डू द एलसीएम। 12 और 24 का एलसीएम आप निकालने जाएंगे तो 24 ही होगा। 12 2s are 24 होता है, तो 7 2s are 14 -1। यहाँ पे भी 12 और 8 का एलसीएम आपके जानकारी के लिए आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, सो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24। अगेन द एलसीएम हियर इज 24। ओके, सो 12 2s are 24, 5 2s are 10 हो जाएगा, एंड 8 3 जा 24, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 13/24, 7/24 एंड हियर इट इज़ 1/6, तो 6 को 24 बनाना पड़ेगा, सो इंटू 4/4, 4/24। ओके, सो माई न्यू रेशियो हियर इज 13:7:4। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन ही एक्वायर्ड शेयर्स फ्रॉम A and B in different ratios, that is why we did not
solved it like this one, because here it was half and half share, but there already the ratio is given in the question, so we have to directly take this much and we have to give it to C. Okay, now moving forward, A and B are again partner. This time their ratio is 3:2 in the question number 4. C is admitted for 1/4 share. C took half from A and half from B. Okay, C took half from A and half from B. Again, the fourth question is bit similar to the second one. So let's solve it like this only. There are two partners, A and B. The ratio is 3:2, which can also be written as 3/5 and 2/5. Okay, now moving forward, C आता है for 1/4 share, which he takes half and half from A and B. A से आधा लेगा, B से आधा लेगा, तो किसका आधा नहीं मालूम, तो 1/4 का आधा. ठीक है, so he will give 1/8 and he will also give 1/8. So now we will directly calculate the new ratio A, B and C. A का ओल्ड रेशियो था 3/5, B का ओल्ड रेशियो था 2/5 और C का तो डायरेक्ट न्यू रेशियो आएगा 1/4. सो एज वी सी ही विल गिव 1/8. इसने 1/8 निकाला और दे दिया. ही विल ऑल्सो गिव 1/8. इसने भी 1/8 निकाला और दे दिया. सो टोटली ही विल गेट 1/4. ओके, अभी 5 और 8 कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 40. 24 माइनस 5 हो जाएगा, अगेन 40. 16 माइनस 5 हो जाएगा और इसको 40 बनाने के लिए 10/10 करना पड़ेगा. सो ये 10/40 हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस. 19/40, 11/40 एंड 10/40. सो माई न्यू रेशियो विल बी 19:11:10. हर बार रेशियो निकालने के लिए हमको डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ता है. सो इन टुडेज वीडियो वी जस्ट मूव वन स्टेप फॉरवर्ड इन रेशियोज एंड वी कंबाइंड इट विथ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. हमने एडमिशन के सिनेरियो में देखा कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसमें कौन कौन से कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशंस बनते हैं, और उस सिचुएशंस में हाउ डू वी कैलकुलेट द न्यू रेशियो, which will further be utilized for calculating the sacrificing and gaining ratio, which has been discussed in the previous videos. If this video was helpful for you, kindly like and subscribe our channel. You can also share the video with your friends and you can ask your doubts in the comment section. Thank you.